State Yadavara Dhote Mahavidyalaya. Then we have discussed about today's topic, the Protista included in Chrysophyceae. Protista. We have discussed about today's topic, Protista, and included in Chrysophyceae. Included topic in Chrysophyceae. तो आज हम देखने वाले हैं कि Chrysophyceae क्या है. We have seen that last lecture, that is the Protista, kingdom of Protista. These are the included, Protista included in 5 for examples. Then first is the Chrysophyceae. First is Chrysophyceae. Second one is the Protista. Protista. These are the animal like Protista. And D for the flagellated Euglena. And S with spline moves. Isn't it? These are the 5 examples included in Protista. These are the first type is the Chrysophyceae. First is Chrysophyceae. Then Chrysophyceae is the double D structure. Double D. What double D? Then dichotomous and dismiss is the golden algae. These are the goldy but not in plant. Okay? ये जो Protista है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि these are the plant, but कुछ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर क्लियर कट रिसर्च किया है, तो उन्होंने कहा है कि these are the photosynthetic in Protista. यहाँ पे photosynthetic Protista यानी ग्रीन जो सनलाइट है उसी से फूड रिजर्व कर रहे हैं थ्रू द क्लोरोफिल भी xanthonite. These are the all pigments. इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली कि उनको कहना ही चाहिए कि वो प्लांट है, बट प्रोटिस्टा है. प्लांट लाइक स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर. इसमें कुछ ऐसे है कि सनलाइट से भी फूड रिजर्व करते हैं. तो यहाँ पे देखो ये डाइकोटोमस एंड डिसमिस इज द गोल्डन algae, not a plant. These are the algae present in water. Then ये हो गया अपना फर्स्ट डिसमिस एंड डाइकोटोमस. तो प्रोटिस्टा, these are the unicellular eukaryotes. Uni means single cell and U means true and karyotes means nucleus. These are the already talked about the last lecture. These are the kingdom Protista, isn't it? Then second one is the freshwater plus marine. Freshwater plus marine. तो यहाँ पे freshwater, these are present in freshwater and marine water. यानी कि जो freshwater होता है उसमें भी present रहेगा और जो dirty waters होता है उसमें भी ये पाए जाएंगे Chrysophyceae, isn't it? But यहाँ पे second one is the microscopic. Second one is microscopic. These are the included. Chrysophyceae included in kingdom Protista, but the Protista is unicellular eukaryotes, isn't it? यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोपिक है मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज. माइक्रोस्कोपिक है मतलब वेरी स्मॉल इन साइज. बट Chrysophyceae included in Protista, but Protista is a unicellular eukaryote. Unicellular means single cell में present है वो, यानी कि वो small, very small in size है, इसलिए वो माइक्रोस्कोप में. अगर obviously हम मोस्टली अगर कुछ चीजें देखते हैं तो वो डायरेक्टली हमें आंखों से नजर आती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती है कि जैसे बैक्टीरिया होगा, वायरस है, ये अलगी है, कुछ अलगी के टाइप्स है, ये डायरेक्टली हमें आंखों से नजर नहीं आते हैं. These are the microscopic, isn't it? Very small in nature. Then float passively planktons. Float in passively यानी कि वाटर का फ्लो जिस तरफ जाएगा, जिस वे में वाटर का फ्लो जाएगा उसी वे में ये जो अलगी है, कौन सी अलगी? गोल्डन अलगी यानी कि क्राइसोफाइट्स. उसको क्या कहेंगे हम? डबल डिनिस, डाइकोटोमस एंड डिसमिस. ये जो है वाटर का फ्लो जिस साइड में जाएगा, जिस वे में जाएगा
उसी वे में वो फ्लोट करेंगे, वो जाएंगे, इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम, पैसिवली। बट अगर ये एक्टिवली होते, तो वो अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते थे, इजंट इट? उसको हम इसीलिए उसको क्या कहेंगे, पैसिवली करेंगे, इजंट इट? देन नेक्स्ट वन इज द मोस्टली फोटोसिंथेटिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो कि मोस्टली फोटोसिंथेटिक ये जो स्ट्रक्चर है, इसको ये फोटोसिंथेटिक से यानी कि सनलाइट से फूड रिजर्व कर रहे हैं, isn't it? बट ये प्लांट नहीं है। These are the photosynthetic protista. These are the photosynthetic protista. बट यहाँ पे देखो क्राइजोफाइसी में जितने भी आएंगे algae आएंगे, गोल्डन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गोल्डन algae देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द इसमें से जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, but all algae not a photosynthetic, isn't it? ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जो मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली, ऑल, मोस्टली एंड ऑल, ये जो इस बात को समझना है आपको। मोस्टली मींस अगर 10 है तो 10 में से अगर 8 होंगे, दीज आर द मोस्टली, isn't it? बट 2 है यानी कि अगर 10 के आउट ऑफ 10 है तो ऑल स्पीसीज आर फोटोसिंथेटिक, ऑल स्पीसीज आर फोटोसिंथेटिक, अगर ऐसे बोल सकते थे। बट मोस्टली यानी कि 10 में से अगर 8 है तो दीज आर द मोस्टली, isn't it? तो इसको आपको याद रखना है। देन ये हो गया फोटोसिंथेटिक इन नेचर। बट सोप बॉक्स मतलब ये जो क्राइजोफाइसी है, इसका जो स्ट्रक्चर है सोप बॉक्स, अगर आप देखते हो यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है सोप बॉक्स का, और बीच में हम सोप रख रहे, ऊपर से हम उसको ढक रहे, ऊपर से हम उसको कवर्ड कर रहे, तो नीचे वाला पोर्शन है हाइपोथिका। नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, हाइपोथिका, एंड जो ऊपर की पोर्शन में हम उसको सोप को ढक रहे वो है अपना इपिथिका, उसको क्या कहेंगे हम, इपिथिका। दीज आर द क्राइजोफाइसी का स्ट्रक्चर है, एंड उसी को कवर्ड विद ये स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे हम सिलिका, उसको क्या कहेंगे हम, सिलिका कहेंगे। These are the silica in gritty nature. These are silica is gritty nature. सिलिका कैसा है, ग्रेटी नेचर। ग्रेटी नेचर होने की वजह से ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिलिका, इंपॉर्टेंट इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। सिलिका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूज ऑफ पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन, यानी कि इसका जो सिलिका का जो कवर है वो पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिलिका इज एम्बेडेड, बिकॉज ऑफ सिलिका इज एम्बेडेड, इसलिए वो पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि टॉनिक एंड सिरप, हम जो टॉनिक यूज करते हैं एंटीबायोटिक वाली, एंड सिरप जो यूज करते हैं उसका फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज होता है। किसका? सिलिका। किसका यूज होता है फिर टॉनिक फिल्ट्रेशन करने के लिए? सिलिका का यूज होता है, isn't it? एंड ये हो गया अपना टॉनिक एंड फिल्ट्रेशन वाला पार्ट। बट बिकॉज ऑफ सिलिका इज एम्बेडेड, सिलिका इज एम्बेडेड, देन ये जो सिलिका का कवर होता है इसके, तो ये जो क्राइजोफाइस्ट है ये बिलियंस ऑफ एंड मिलियंस एंड बिलियंस में वो कवर्ड होकर रहते हैं, यानी कि डिपॉजिट होकर बंद रहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस तक वो बंद रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ सिलिका इज एम्बेडेड, isn't it? Then diatomaceous deposited silica which is called the diatomaceous। यहाँ पे सुनो, थोड़ा सा गौर करो कि यहाँ पे सिलिका इज एम्बेडेड, यानी कि डिपॉजिटेड इन सिलिका, डिपॉजिटेड सिलिका which is called diatomaceous, which is called diatomaceous। Then what is the
यहाँ पे वो डिपॉजिट होने की जो प्रक्रिया है, जो डिपॉजिट होने का जो मेथड है, उसको हम कहेंगे डायटोनोमस अर्थ। क्या कहेंगे हम? डायटोनोमस अर्थ। Isn't it? Then what is the diatonomous earth? The cell wall is remaining. Cell wall is remaining. And last that point, the chief producer. Last point is chief producer. तो ये chief producer क्या है? For example, food chain. For example, food chain. तो chief producer क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जो ओशियन में, मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में जो बाकी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली यही एक ऑर्गेनिजम्स नहीं था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, यानी प्रेजेंट में वाटर रहते हैं, तो उसको वो फूड प्रोवाइड करता है। कौन? ये चीफ यानी कि क्राइजोफाइस्ट। ये जो क्राइजोफाइस्ट है, मोस्ट ऑफ द डायटोनोमस एंड डिसमिस, दीज आर द गोल्डन एल्गी, ये जो है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। फूड प्रोवाइड करता है, जो वाटर में ऑल ऑर्गेनिजम्स है उसको ये फूड प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको कहा गया है चीफ प्रोड्यूसर। इसको क्या कहा गया है? चीफ प्रोड्यूसर। तो फॉर एग्जांपल फूड चेन, फॉर एग्जांपल फूड चेन यानी कि आप इकोलॉजी का जो पार्ट है, इकोसिस्टम जिसको कहेंगे, इकोलॉजी का यानी कि एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें इकोलॉजी आता है, तो उसमें आपको फूड चेन एंड वेब चेन पढ़ने के लिए मिलेगी। तो उसमें से हम फूड चेन देखते हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर, isn't it? Then next one is the primary producer. Primary producer, and second one is the secondary producer, and third one is the tertiary producer, isn't it? And last is the final producer, final producer, and last one is the decomposers, decomposers. तो यहाँ पे ये जो वेज है फूड चेन की, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं फर्स्ट ऑफ द, यानी कि हम किसी को खाना दे रहे हैं, isn't it? This one is the one producer, but secondary वो second primary producer वो next इसको दे रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम पापा के ऊपर डिपेंड है, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है, isn't it? तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो फर्स्ट जो रहेगा उसको कहेंगे हम प्रोड्यूसर, यानी कि अपनी फैमिली है, फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली है, तो अपनी फैमिली में अगर जो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द टॉप में रहता है, टॉप में रहेंगे, फॉर एग्जांपल पापा होंगे, बाकी कुछ फैमिली में उससे बड़े अगर नहीं होंगे, वही एक सिंगल वन कमाते होंगे, तो दीज आर द प्रोड्यूसर। बट उसके बाद अगर जो खाएंगे, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, isn't it? तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, दीज आर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी, फाइनल एंड लास्ट द डिकम्पोजर्स, यानी कि फाइनल जो रहते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि वो डायरेक्टली डिकम्पोजर ही होना है, ये प्रोसेस होती है। तो इसमें जो यहाँ पे देखो चीफ प्रोड्यूसर कहा गया है, तो ये उनको खाना प्रोवाइड करे, इसीलिए उसको चीफ प्रोड्यूसर कहा गया है, यानी कि प्रोड्यूसर फर्स्ट इज, isn't it? तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ये हो गया आपका क्राइजोफाइसिस, टोटली क्राइजोफाइसिस, हम थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेते हैं, isn't it? Then हम सबसे पहले क्राइजोफाइसिस द डबल डी स्ट्रक्चर, डबल डी स्ट्रक्चर, डायटोनोमस एंड डिसमिस, दीज आर द गोल्डन algae, not a plant, okay? One dd, यहाँ पे डाई मीन्स टू, डाई मीन्स क्या होता है? टू, इसीलिए यानी कि 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ
these are the macroscopic structure. And floating passively मतलब जो वाटर की फ्लो डायरेक्शन जिस वे में जाते हैं उसी वे में वो फ्लोट होंगे. अगर उसको एक्टिवली अगर होते तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लोट हो सकते थे, बट वो एक्टिवली नहीं है. Then most of them mostly photosynthetic in nature, mostly but not all. Okay, mostly photosynthetic यानी कि सनलाइट से वो फूड रिजर्व करते हैं. Then soap box मैंने कहा था नीचे वाला पोर्शन है हाइपोथिका, then ऊपर वाला पोर्शन है एपिथिका. Then silica is the embedded structure. Why? The polishing and filtration. पानी फिल्ट्रेशन के लिए उसका यूज होता है सिलिका का, एंड पॉलिशिंग के लिए होता है. हम किसी भी चीज को पॉलिश करते हैं. These are the use of the silica. Okay. Then diatonomous earth. What is the diatonomous earth? The cell wall is remaining. Cell wall is remaining, and silica is embedded, which is called the diatonomous earth. Then last is the chief producer, क्योंकि वो प्रोड्यूसर इसीलिए क्योंकि वो खाना प्रोवाइड करता है जो वाटर में ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उसको, इसीलिए उसको कहा गया है चीफ प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर. इजंट इट? आई होप कि आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.